আসানসোলের ১৯ নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া কালীপাহাড়ির বাঘবন্দিতে একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পরে মঙ্গলবার দুপুরের পরে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান মৃত শ্রমিকের পরিবারের সদস্য ও এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে কারখানার আসেন বিজেপি নেতৃত্ব। তারাও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আসানসোল দক্ষিণ থানার কালীপাহাড়ি মোড় এলাকার বাসিন্দা মৃত শ্রমিকের নাম মুন্না ওরফে মান্না সাও, ৩৮। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে শ্রমিকের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্যদিনের মতো সোমবার সন্ধ্যায় আসানসোলের কালীপাহাড়ির বাঘবন্দি এলাকায় একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করছিলেন মুন্না ওরফে মান্না সাও। সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সন্ধে ৭:৩০ নাগাদ তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই কারখানার অন্য শ্রমিকদের অভিযোগ, এই দুর্ঘটনাটি কারখানা কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফল। কারখানা চত্বরের বিভিন্ন স্থানে খোলা বৈদ্যুতিক তার পড়েছিল। শ্রমিকরা বারবার কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানালেও কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করে বলে অভিযোগ। সেই কারণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মুন্না সাও মারা যান। শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের ইএসআই এবং পিএফের মতো সুবিধা দেয় না। এছাড়াও ওভারটাইম এবং অপর্যাপ্ত মজুরি নিয়ে শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আগেও বেশ কয়েকবার বিরোধ হয়েছিল। এই ঘটনার পরে কোম্পানির কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মুন্না সাবের মরদেহ কারখানার বাইরে রেখে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকারীরা মৃতের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। মৃত শ্রমিকের ভাইপো বিজয় সাও বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের ঘটনার কথা বলেনি। কাকার সঙ্গে কাজ করা একজন আমাদেরকে জানান। তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। এই প্রসঙ্গে বিজেপির যুব মোর্চার নেতা রাহুল সিনহা বলেন, গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। এই কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। মৃত শ্রমিকের পরিবারকে আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সেই দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনার পরে এই খবর লেখা পর্যন্ত শ্রমিকদের করা অভিযোগের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। यहाँ चाचा काम करते हैं। कल पानी गिरा है, उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था कंपनी में। मेरा चाचा को करंट मारा, उनका साथ और एक जन को करंट मारा है। तो वो तो यंग लड़का था, बच गया। मेरा चाचा को अच्छा करंट मार दिया है। तो आप लोग कहाँ ले गए? और ये कंपनी का ना जीएसटी है, ना आपका एसआई है, ना पीएफ। इतना बड़ा कंपनी है, इसमें जीएसटी एसआई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चलाने कैसे दे रहे इसको? ना कोई इंश्योरेंस है? और ना कोई इंश्योरेंस है। लेबर का भी इंश्योरेंस बोल के कुछ नहीं है। आप आइए, काम कीजिए और घर जाइए, जो हाजिरी आपको वही मिलेगा, इससे अदर कुछ नहीं है। तो जब घटना घटा था आप लोग को खबर क्या मिला था? हम लोग को खबर मिला कि उनका साथ जो काम करते हैं, फ़ोन किया कि चाचा को तुम्हारा करंट लग गया है। तो हम लोग सोचे नॉर्मल करंट लगा है। तो हम लोग दोनों भाई दौड़ के ही निकले घर से। अब 2 जन 3 जन फ़ोन करेगा, नॉर्मल लगा हुआ है। हम लोग दोनों भाई निकले घर से। ट्रैफिक में हम लोग को मालूम चला कि चाचा को देखे तो अवस्था खराब, कालीपाड़ ट्रैफिक में। अब वहाँ पे जब देख रहे हैं हम, जब बॉडी हाथ में अपना लिया तो देख रहे वो डेट कर चुके हैं। आप लोग हॉस्पिटल ले गए? फिर हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम। वहाँ डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला कि आदमी नहीं रहा। क्या लग रहा है लापरवाही की वजह से? हाँ, पूरा लापरवाही है। अब पूरा समझ ही सकते हैं। पूरा कंपनी का आपका नाम बताएं? मेरा नाम विजय साहू और उनका नाम है मन्ना साहू। वो मेरे रिलेशन में चाचा लगते हैं। कितना उम्र होगा उनका 38। ये घटना घटा है आपका ये कालीपाड़ी बागबंदी, और ये जगह जो है क्या टिपलू बनवाल ना, विजय बनवाल टिपलू बोल के। तो उसी के अंडर में सब अलग अलग पार्ट में करके सब दिया गया। उसमें स्टील का जो पलंग उलंग बनता था, उसी में हमारे कालीपाड़ी के मन्ना साहब बोल के थे, मन्ना दा बोल के। उनका कल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से काम करते वक्त उसमें उनका देहांत हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाते उनका देहांत हो गया। उसके लेकर आज बात हुई थी कि आज वो 2:30 बजे
उनके मालिक आएंगे, वो बोले कि हम 2:30 बजे तक सबको बैठ के जो भी होगा हम लोग तय करेंगे। उसके बाद देखा गया ना उनका मालिक का फ़ोन स्विच ऑफ है। मैनेजर जो बोल रहे हैं उससे परिवार के लोग उस पर सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोग 50,000 रुपया श्राद्ध के लिए और 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन के रूप में देना चाहिए, 1.5 लाख रुपया। तो ये कोई सब्जी बाज़ार तो है नहीं, जो फैक्ट्री में आप 50,000 का पर डे का इनकम कर रहे हैं और एक कोई आपका सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है, और जो एमसीबी अगर कुछ लाइट का थोड़ा सा भी होता है तो कुछ सेफ्टी बोल के कोई इंश्योरेंस कुछ भी नहीं किया गया है। अनलीगल तरीक़ा से टोटली यहाँ काम देखेंगे तो अनलीगल तरीक़ा से किया गया है। यहाँ का जो मालिक जिसका नाम विजय बर्नवाल टिप्लू है, टोटल देखिएगा इसके पहले कॉर्पोरेशन 26 करोड़ का फाइन किया हुआ था। तो ये टोटल अनलीगल तरीका में यहाँ पर छान होना चाहिए। और इसके बाद अभी हमारे विधायक यहाँ के जो कृष्णनंद है उनको भी मैंने जानकारी दिया, और हमारे और से यहाँ अगल बगल के लोग सब बता रहे थे यहाँ अनलीगल तरीका से बहुत सारा काम हो रहा है। बोलते हैं लेबर लॉ भी नहीं मान रहे। लेबर के लिए तो आप लोग का आज श्रम मंत्री भी यहाँ पे हैं ही, अजय पोद्दार, क्या उनको भी बताएंगे कि लेबर का नियम नहीं मान रहा है? लेबर का बहुत सारा ये कटमनी हो रहा है, जैसे उन लोग को ये पीएफ ये ऐसा ही नहीं मिलता है। जी, इसके लेकर भाई हम लोग अभी सरकार बने अभी 40 दिन हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ में अभी एक जगह हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ के लोग जब बताए तो अभी फ़िलहाल ये घटना को लेकर तो ये इसमें क्या क्या कमी इस तरह का अब हम लोग जानकारी ऊपर में अपने देंगे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि परिवार का जो है उनका जो छोटा बच्चा है, एक उनका वाइफ है, उनका और कोई सहारा नहीं था, यही कमाते थे, इसी की वजह से सहारा था। तो इसके वजह से उनका कुछ हो सके ऐसा किया जाए कि जो उनका जीवन पार हो सके, क्योंकि लेडीज़ महिला तो आके यहाँ काम नहीं कर पाएगी। जो होगा तो उसके वन टाइम कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से उनका परिवार चल सके, यही हम लोग का डिमांड है। और कोई शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग कर रहे हैं, कोई अभी ऐसा कुछ हम लोग किए नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं बीजेपी प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी सदस्य हूँ युवा मोर्चा से।